respected Chief Minister of Uttar Pradesh, my colleague in the Union Cabinet, Minister of State, Pankaj Chaudhary ji. Also before me, I can see the Finance Minister of Uttar Pradesh, Shri Suresh Khanna ji, the Law and Justice Minister, Brajesh Pathak ji, Revenue Secretary, the two chairmen of the two boards, also the Principal Commissioner of IT, Ashish Verma, Government of Uttar Pradesh's senior most officials and Government of India's officials. I'm indeed very pleased to be here today on the occasion of Lokarpan of the building, which is the direct taxation CBDT's building, which will probably essentially take care of the entire eastern Uttar Pradesh's direct taxation collection and also servicing people in this regard. Before I start my detailed in this context, I would first of all want to say with certain sense of pride and also with a sense of feeling extremely happy that it was the staff of the CBDT who gave a very auspicious beginning to this program. So income tax officials are not just looking after taxation. माननीय मुख्यमंत्री जी सरस्वती वंदना खाने वाले पूरे हमारे ही स्टाफ है, तो उनके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ कि टैक्स कलेक्टर्स सिर्फ टैक्स कलेक्शन नहीं करते हैं, उनमें बहुत सारे गुण ऐसे भी होते हैं जो हम प्रेस करना चाहते हैं. I'm sorry for my Hindi, but it was so beautiful that we sung it for us. But the story of this building itself says a lot about how we are utilizing our resources. इस बिल्डिंग का जमीन 2002 में ही खरीदा गया, मगर उसका बनाने के पहल शुरू 2017 में हुआ, जिसके बाद एनबीसीसी के साथ एग्रीमेंट करने के बाद जुलाई अगस्त में एनबीसीसी से एग्रीमेंट होने के बाद उस साल काम शुरू हुआ, जो 17 से 20 के अंदर 3 साल के अंदर इस भवन का निर्माण हुआ. 15 साल का कोई अकाउंट नहीं है जहां जमीन हमारे हाथ में था मगर बिल्डिंग बनाने का कोई भी प्रयत्न नहीं हुआ, जिससे मुझे दुख लगता है कि इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स जो जैसे पंकज चौधरी जी ने सही बताया, किराए के जहां पर ऑफिस बना सकते थे वहां बना करके काम कर रहे थे, जबकि इतना अच्छा सा मकान 10-15 साल पहले से ही हमें अगर मिलता, हमारे ऑफिसर्स का स्टाफ का काम करने का कोई फैसिलिटी भी उनको मिल जाता था. सो मेनी ऑफ द वेज इन विच नॉट जस्ट उत्तर प्रदेश बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी एक आलस, एक दैट बिकेम अ माइंडसेट दैट हाँ चलेगी, काम चलेगी, करेंगे जब भी करेंगे. That has been broken. I'm happy to say it is, I know it is a government function. I'm not talking politics, but between 2000, whenever before 2014, that mindset of it will happen sometime has now changed, whether in Uttar Pradesh or all over the country. It is time for all of us to do सबका प्रयास. ये नजर आता है अभी कि प्रयत्न चल रही है यूपी में डेवलपमेंट का, प्रयत्न चल रही है सीबीडीटी और इनकम टैक्स और हमारे मंत्रालय में भी कि जल्दी सुविधा सबको मिले, नॉट जस्ट फॉर पब्लिक बट ऑल्सो जो पब्लिक को सर्व करते हैं उनको भी अच्छा सा सुविधा बनाने के लिए अभी ज्यादातर प्रयत्न चल रही है. I want to say as a reflection of this kind of a prayatna, you are able to see that in Uttar Pradesh itself, the collection of taxes has improved so much. I'm sure Suresh Khanna ji, who is seated before me, will be happy to know that I'm quoting figures in which he and Manya Mukhyamantri ji are playing a very important role. That the improvement in collection is a reflection of both central and state government officials who are able to generate that kind of an activity.
इसलिए इस संदर्भ में फिगर्स कोट करना चाहती हूँ। टोटल नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स इन उत्तर प्रदेश ईस्ट में 21.83 lakh as on this year March। 31 मार्च 2021 में ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से हमें 21.83 लाख फाइलर्स का नंबर है। ये डायरेक्ट टैक्सेशन का बोल रही हूँ मैं। मतलब 1.63 new SSC, 1.63 lakh new SSCs have made this possible। 2021 में सिर्फ 1 ईयर में 8% इंक्रीज हुआ है फाइलर्स का संख्या, सिर्फ 1 ईयर में 2020-21 में। और 2016 में 3.80 लाख, 4 लाख के नजदीक में नंबर था रिटर्न फाइलर्स का ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। मगर वो नंबर आज बढ़ करके इस साल मार्च तक 21.83 लाख, मतलब 6 गुना बढ़ी है, 6 फोल्ड बढ़ी। इससे मुझे इसलिए आनंद होता है कि ये इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द पोटेंशियल दैट लाइज इन दिस रीजन, पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज हैपनिंग। उसके कारण एसएससीज का संख्या बढ़ना, और एसएससीज का संख्या जब बढ़ता है और नेचुरली उससे इनकम बढ़ती है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए खर्चा भी कर सकते हैं। इसमें मैं एक छोटा सा लिस्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा ही डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का संख्या बढ़ते आ रही है इस रीजन में, और इस समय हम उसको ध्यान दिलाना आवश्यक है। क्योंकि जब इनकम टैक्स भरने वाले की संख्या बढ़ रही है और उससे इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, वो पैसा कहाँ जाता है? डेवलपमेंट के लिए जाता है। मैं सिर्फ एक लिस्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ। 435 लाख metric tons of food grains have been procured by government of Uttar Pradesh government, and 79,000 crores इसके लिए फार्मर्स को गया है, जो प्रोक्योरमेंट का रास्ता लेकर के किसान तक पहुंचा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लागू है। फिर हर घर जल योजना के तहत 30,000 ग्राम पंचायत में हर घर जल पहुंचा है। वो भी पैसा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पैसा खर्च करके जनता, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है हर घर तक जल पहुंचना चाहिए, इधर वो सकारात्मक रूप से हमें देखने को मिलता है। फिर आज के कोविड के माहौल में मुफ्त इलाज और मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं पूरे देश में। सिर्फ एक विषय में आपके सामने उत्तर प्रदेश के लिए बोल रही हूँ। इट इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू वैक्सीनेट मोर देन 9 करोड़ पीपल। 9 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिलाया गया। फिर फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट 2.75 लाख कोविड टेस्ट डेली, मतलब हर रोज 2.75 लाख लोगों का टेस्ट लिस्ट में हर रोज कंडक्ट कर रहे हैं। फिर कोविड टेस्टिंग लैबोरेटरीज का संख्या 234 तक पहुंचा है विद इन वन स्टेट। इन वन स्टेट कोविड टेस्टिंग लैबोरेटरीज आर नाउ 234। फिर बेड्स का संख्या भी बढ़ाया गया इस दौरान। 1.8 लाख कोविड बेड्स आर अवेलेबल इन उत्तर प्रदेश अभी। इसीलिए सेकेंड वेव के समय में भी उत्तर प्रदेश का सुविधा में कुछ कमी नहीं था, जनता को ये सब उपलब्ध था। मैं इस मौके पर ये सब इसीलिए कह रही हूँ कि जब एक इलाके से, एक प्रांत से कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन इंप्रूव होता है, उसका असर तुरंत जनता में दिखने को मिलता है। फिर 555 oxygen plants have been approved and installed, 392 functional है। मतलब ये 555 से 392 अभी फंक्शनल है ऑक्सीजन प्लांट्स। फिर उत्तर प्रदेश में शायद 80 डिस्ट्रिक्ट है
उसमें 59 में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुका है और फंक्शनल भी है। ये फंक्शनल। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42 लाख हाउसेस ऑलरेडी हैव बीन कंप्लीटेड उत्तर प्रदेश में। फिर एक और विषय मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, सीनियर सिटीजन हो, विडोज हो, दिव्यांग हो, डेस्टिट्यूट विमेन हो, इन सबको पेंशन विदाउट कुछ दिक्कत मिल रही है। वो 500 रुपीज 500 रुपया मंथली पेंशन 90 लाख लोगों को मिल रही है, जो विडोज है, डिसेबल्ड है या विडो डेस्टिट्यूट विमेन है। उन सबको 90 लाख अब तक का संख्या 90 लाख लोगों को अभी तक ये 500 रुपया महीने का मिल रही है। फिर लास्ट एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, एवरी विलेज, हर गांव और हर घर में बिजली पहुंच चुका है। इससे ज्यादा मैं एलैबोरेट नहीं करना चाहती हूँ, मगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का ध्यान सरकार के पास होना चाहिए और वो इम्प्लीमेंट करने में मेहनत करना चाहिए और उसके लिए साधन भी होना चाहिए। वो साधन उपलब्ध करने हमारे कर्तव्य है, जो करदाता से हम केयरफुली कलेक्ट करके, इसमें बोलते हैं लोग प्रोवर्बियली, जैसे शहद को ये मधुमक्खी ले आता है विदाउट हर्टिंग द टैक्स पेयर, ले आना हमारे ड्यूटी है। इसमें मैं मानती हूँ कि हमारे ऑफिसर्स और स्टाफ particularly in the direct taxation area will work with careful attention. इसके अलावा जस्ट 3 और मुद्दे आपके सामने रखना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्टिविटी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके भाषण में जिक्र किए उसका। 16 तारीख नवंबर में आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों में से, और 19 नवंबर का महोबा में एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 3 or 4 of them को प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किए और which were major sites. Then of course South Asia's largest airport in Jewar. These are not possible unless tax collection improves and that is devolved to the states. Devolution अच्छा सा हो रही है। आपको मालूम है इस बार नवंबर 20 तारीख को जो डेवल्यूशन के तहत मिलना है स्टेट्स को, उससे द्विगुनी इसी बार 2 times the amount, an amount which is an installment to be paid in March have also been paid in advance to the states so that इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उनके खर्च में रुकावट पैदा ना हो। इसीलिए पहले से ही हमने फ्रंट लोड करके मार्च के महीने में जो देने वाले इंस्टॉलमेंट है वो भी अभी ही दे रहे। सो आई जस्ट कंग्रेचुलेट द CBDT एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर हैविंग टेकन दिस एफर्ट टू गेट दिस बिल्डिंग डन। और मैं आभारी हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो आज हमारे साथ आकर के हमारे इस बिल्डिंग को उद्घाटन करने के लिए उनके समय हमें दिया, उसके लिए उनके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।